Bismillahirrahmanirrahim. Today is our first lecture for theory for the course of Introductory Genetics. Course code is PBG 301. PBG 301 and today we will discuss the initial what is genetics as a course which is designed for the first semester students and what are the different things we have to study in this course we have discussed in our other video which will detailed discussion that what are the course contents what we have to study in the theory part and what are we have and what are the things we have to study in the practical part. First of all we have to discuss about the genetic. What is genetics? Genetics is the branch of science which deals with the study of heredity and variation. Science which deals with the heredity and variation. Now, question arises: what are the heredity and what are the variation? These two things we have to study in the genetics. Heredity is the transmission of characters from the parent to their offspring. This heredity contains both similarities and differences. And other one is variation. Variation is the differences among the parent to their offspring. What are the parents and what will be their offspring, and what will be the differences among the parent to offspring? These are known in, or these are called the variation. Changes or variation you can say. Then variation are of two types: heredity variation as well as environmental variation. First of all, we will discuss the heredity variation. Heredity variation or genetic variation, and these can be transmitted from parent to offsprings. And other are the environmental variation. These are acquired on the non-heritable. For example, you can say one bodybuilder have its child should be bodybuilder, but these are not the heritable, these are environmental. The bodybuilder contain its abilities, changes its body structure from by the environment. And the next one is genetics. As we have studied, the genetics is the branch of science which deals with the heredity and variation. Now, what is genetics? Genetics is the word which is derived from the Latin word which means the genesis. Genesis, you can say it is the creation. And the word genetics was coined by the Bateson in 1906. बेटसन ने जेनेटिक्स का जो वर्ड था वो दिया था 1906 के अंदर, BATSON। बेटसन साइंटिस्ट का नेम था और 1906 के अंदर उसने जो वर्ड जेनेटिक्स कॉइन किया था, जिसकी बेस पे जो सारी जेनेटिक्स बेस करती है। जेनेटिक्स इज द फंक्शनल, जेनेटिक्स के अंदर जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? जीन। जीन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज जो भी चीज़ आप पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट करनी है वो जीन के थ्रू इनहेरिट करनी है, और जीन्स जो है वो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट वी विल बी डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। एंड number one genetics, number two gene genetics. In genetics we study the heredity. Heredity is the similarities and differences of parent to offspring. And then we have discussed the variation. These are the differences of offspring we show from their parent. Then we have studied the term genetics was coined by Bateson, which means the genesis, creation. And the gene is a functional unit. Now we will go forward from gene. Allele. There is a one gene and one gene on one chromosome and other gene is on the other chromosome, and these two alternate form of a gene is known as, one is here on one chromosome and other is on other chromosome, and these two alternate form of a gene is known as allele. Allele is the different form of सेम जीन, कि एक ही जीन है लेकिन वो क्रोमोसोम की एक आर्म पे भी है और दूसरी आर्म के ऊपर भी है, तो हम उसको कहते हैं अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। एंड जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट भी होती हैं और रिसेसिव भी होती हैं। और डोमिनेंट का इशू ये है कि डोमिनेंट हम कहते हैं ना, कोई बंदा आया तो वो डोमिनेंट कर गया, क्या है कि वो दूसरे सब की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बात मनवाता है या अपनी बात करता है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है कि जो सब के ऊपर हैवी है, सब के ऊपर जो
गालब आ जाता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, गालब आ जाता है। तो ये होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट को हम जो जेनेटिक्स के अंदर कैपिटल वर्ड से यूटिलाइज या रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं कि क्योंकि वो अपना जो इफेक्ट है वो शो करता है, डोमिनेंट जो है। सेकंड वन इज रिसेसिव, कि रिसेसिव क्या है, जिसकी बात हो रही होती है और डोमिनेंट आके वो जो है ना वो उसकी बात खत्म कर देता है। अब कैपिटल, अगर हम बात करें टॉल की, प्लांट हाइट है वो टॉल है, तो वो क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो अगर रिसेसिव की बात करें, कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी भी आता है ना, तो फिर भी वो डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो करेगा। अभी हम बात करें कंप्लीट डोमिनेंस की, ठीक है ना, तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा। इस तरह से क्या है कि वो डोमिनेंस टॉल होगी। अब बात रहेगी रिसेसिव की, उसने कब अपना एक्सप्रेशन शो करना है, स्मॉल टी जो है। तो स्मॉल टी होंगे तो देन दैट प्लांट विल बी शॉर्ट, वो जो प्लांट है उसकी हाइट छोटी होगी अगर स्मॉल टी होगा। देन हेरिडिटी, inheritance or passing of trait from parent to offspring is known as heredity. Similarities which progeny shows to its parent and provide the organic continuity between the generation। के पेरेंट्स हैं, उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन होगा, अगर फिश है तो फिश होगा, अगर डॉग है तो डॉग होगा, अगर वो वीट है जेनेटिक्स के अंदर हम बात करें तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो भी वीट होगी, राइस नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो वीट ग्रेन विल प्रोड्यूस वीट सीडलिंग। तो जो पपीज जो डॉग है वो भी अपने डॉग को प्रोड्यूस करता है। हेरिडिटी करेक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देने के लिए, आई कलर जो है, जो ज़ुबान की रोलिंग है, जो हम लोग डिफरेंट करेक्टर्स जो है ना, जो नोटेबल करेक्टर्स हैं। अब वेरिएशन क्या चीज़ है, वेरिएशन डील विद दी डिफरेंसेस, जो पेरेंट के साथ ऑफस्प्रिंग के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। वेरिएशन डील विद द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज एग्जिबिटेड बाय द इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेनी। Variation present in the various characters of the members of the same group of related individuals, it may be due to mutation। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि वेरिएशन किस किस वजह से हो सकती है, जो चेंजेस हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो चेंजेस हैं वो किस किस वजह से हो सकती हैं। उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, डेट मे बी ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन स्ट्रक्चर, न्यू रिकम्बिनेशन or change in environment। These three factors, mutation in gene structure, new genetic recombination और change in environment। अब हम वन बाय वन इसकी एग्जांपल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हम लेटर जो डिस्कस करेंगे बाद में, जो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे। म्यूटेशन इन जीन स्ट्रक्चर, कि वो जीन स्ट्रक्चर क्या है, कि वो जीन स्ट्रक्चर हमारे पास कैपिटल टी था, उसके साथ वो चेंज हो गया स्मॉल टी हो गया, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया और वेरिएशन आ गई। देन न्यू रिकम्बिनेशन क्या है, जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस जो है, वो मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है और जो न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं। अब कुछ स्टूडेंट है जिनको सेल डिवीजन का नहीं पता, तो उनके लिए मियोसिस माइटोसिस का हम सेपरेट लेक्चर एक अरेंज करेंगे, या जो फोर्थ सेमेस्टर वालों को मैंने एक लेक्चर दिया उसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सेल डिवीजन के नाम से यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है मेरी ना, डॉक्टर शदाब शौकत PBG 401 सेल डिवीजन के नाम से ना, तो मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा, उसका भी लिंक सेंड कर दें, आप वो भी देख लें। उसके अंदर 4 डिफरेंट फेजेस हैं, पालमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब जो एना प्रोफेज है, प्रोफेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे कम क्लोजर, और उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होती है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट के बाद जो है एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे पे चला जाता है, दूसरे का क्रोमोसोम का सेगमेंट पहले पे चला जाता है, तो ये इस तरह से न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन बन जाते हैं। नंबर लास्ट जो है, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो चेंज इन एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से भी हो जाते हैं, कि आप एक एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज करें तो उसकी वजह से जो चेंजेस आती हैं, दीज आर आल्सो इन द वेरिएशन। तो जो हेरिडिटी है उसके ऊपर इन्वायरमेंट का अपना एक फैक्टर है। इन्वायरमेंट का जो भी चीज़ सराउंडिंग में है, फॉर एग्जांपल अभी हम इस रूम में बैठे हैं, आप अपने पास जहाँ पे बैठे हैं, सराउंडिंग के अंदर जो जो चीज़ें दे आर ऑल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट का भी फैक्टर आता है। ए चेंज इन एनवायरमेंट देयरफॉर एनी चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड सच चेंज विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर ऐसा हो तो बॉडी बिल्डर जो उसका बच्चा बॉडी बिल्डर होना चाहिए, जो टेलर है जिसको स्टिचिंग का पता है उसका बच्चा टेलर होना चाहिए,
जो बार्बर है उसका बच्चा बार्बर होना चाहिए। क्यों? दीज चेंजेस आर एक्वायर्ड, आप एक्वायर करते हैं, दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड। एंड इन्वायरमेंट के अंदर दो इन्वायरमेंट है, एक जो कमरे इस टाइम रूम का इन्वायरमेंट है, रूम इन्वायरमेंट, एंड अदर इन्वायरमेंट इज room environment is known as external environment, and my body environment is another environment. The things happening in our body, these changes are these environment, that environment is known as internal environment. For example, cell, DNA, each and everything which is internal environment, and the weather, soil, and wind, table, this is the external environment. And heredity deals with the environmental changes, but these environmental changes are not transmitted to the next generation. And one thing most important, who is the father of genetics? Mendel is known as the father of genetics. Mendel is known as father of genetics. Mendel developed the principles of heredity while studying the seven different contrasting pair of traits. What are the contrasting pair of traits which can be easily distinguishable, जिनको हम आसानी से बता सकते हैं ये टॉल है, ये हाइट है, ठीक है ना? तो अन दो सिग्निफिकेंट वर्क जो मेंडल का काम है, दैट वाज रियली सिग्निफिकेंट, जो आज भी जेनेटिक्स के अंदर चीज़ें यूज हो रही हैं, दोज आर रिलेटेड टू मेंडेलियन वर्क। मेंडेलियन अप्रोच क्या थी? मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन, और 7 ईयर्स उसने काम किया, 1856 से लेके 1863 तक, and proposed two laws of inheritance which are also used nowadays. First is the law of segregation, and other is the law of independent assortment. And he was a statistician, he was a mathematician, he also used these both technical terminologies, technical of statistics and mathematics for solving the numerical problem. And he used, first time Mendel used the math and stat in the biology. Large sum, he confirmed that inflorescence from experiment. He also give us the basics of recessive, dominance, laws of segregation, law of independent assortment, and what are those different seven contrasting pair of traits were: plant height, that was tall and short, dominant was tall, recessive was short, and the seed shape which was round, dominant, and wrinkled, which was the recessive trait. Then the seed color was yellow, and which was dominant, and the recessive was green. Likewise in seed coat color, seed coat was green, dominant, and white was the recessive trait. Fifth one is the seed shape, pod shape. Pod shape was inflated, which was dominant, and which other one is contested, which was flat, the recessive trait. Pod color was green, which was dominant over the yellow color, and the yellow was the recessive. And then last one, which was the seventh trait, which is flower position. Axillary was dominant. For example, you can say that's a flower plant, and from here, from the basal part, if the flower grow, that's the axillary position, which is dominant over the terminal mean on the top. अगर flower top पे आता है तो that is terminal, and which is recessive part. Then we have a different terminologies like phenotype, genotype, phenotypic ratio, homozygous, heterozygous. Phenotype is the physical appearance, genotype is the genetic makeup. और जो जीनोटाइप है उसको, वो जीन, जो जीन है, दैट इज जीनोटाइप. And phenotypic ratio is a correct proportion of phenotype in the population is known as phenotypic ratio, and correct proportion of genotype in the population is known as genotypic ratio. Homozygous mean both alleles have same. For example, capital T and capital T, these are homozygous for dominant. And if they are small t, they are homozygous recessive. And other is hetero. Hetero means different. Capital T, small t, capital T is known as heterozygous. And dominant gene, we have discussed that gene that express its character in the heterozygous condition.
कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है तो उसने अपना ट्रेट को एक्सप्रेस करना ही करना है। अगर वो हेटेरोजाइगस के अंदर है फिर भी वो ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, एंड ही मास्क द expression of a recessive allele and a recessive gene that fail to express characters in the heterozygous condition. And then is the hybrid progeny obtained by crossing of two parents to different characters जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, फॉर एग्जांपल वीट की दो डिफरेंट वैरायटीज हैं, फैसलाबाद है उसका उकाब से क्रॉस करवाते हैं, दैट इज F1 which is produces the hybrid. And two most important terminologies are the test cross and back cross, which we will discuss right now. What is back cross? Back cross is the cross of F1 with any of its parent. फॉर एग्जाम्पल आपने फैसलाबाद का उकाब से क्रॉस कराया, आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है F1 आ रही है, सीड को आपने ग्रो किया, आप जो F1 है उसका उकाब से भी क्रॉस करवा सकते हैं और फैसलाबाद से भी क्रॉस करवाते हैं, दैट क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस. Other one is test cross, which is mostly used in the plant breeding. These both crosses are used in the plant breeding. Test cross is cross of hybrid, like in F1. Cross of hybrid or F1 with its homozygous recessive parent. अब हमें एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे जो फैसलाबाद 08 है या उकाब 08 है, इन दोनों में से एक रिसेसिव है, हम कह देते हैं फैसलाबाद 08 है. जो आपकी इन दोनों के क्रॉस के बाद F1 आई, आप इनकी रिसेसिव पेरेंट फैसलाबाद से क्रॉस करवाते हैं, दैट इज टेस्ट क्रॉस. इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड, कि हमें हाइब्रिड की जो जीनोटाइप है उसको टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इसके साथ. देन वाई मेंडल, अब आप लोगों को बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों को पता होना चाहिए. बैक क्रॉस क्या है? क्रॉस ऑफ F1, जो दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाने के बाद F1 आती है. क्रॉस ऑफ F1, जो F1 है उसका क्रॉस करवाना है एनी ऑफ इट्स पेरेंट, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, दैट इज बैक क्रॉस. अगर वो हम होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी से करवाते हैं, F1 का जो क्रॉस है जो पेरेंट का बाद आया है F1, उसका क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से करवाते हैं, दैट इज टेस्ट क्रॉस. और वो क्यों यूज होता है? क्योंकि हम हाइब्रिड की बिकॉज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड. जो हमारे पास F1 है उसकी जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है ना. ये थी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज. अब हम देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया. जेनेटिक्स के अंदर जितनी भी ब्रेक थ्रू आई है वो मेंडल की वजह से आई है. जो बेसिक क्लास है दोज आर आल्सो गिवन बाय द मेंडल. तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों यूज़ किया था? तो उसके कुछ रीजंस हैं. प्योर वैरायटीज वर अवेलेबल, कि उसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी थी पी प्लांट के अंदर. पी प्लांट्स वर इजी टू कल्टीवेट, वो आराम से उनको मतलब इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, इजीली हम उनको ग्रो कर सकते हैं. लाइफ साइकिल उसका शॉर्ट था, फ्यू मंथ्स के अंदर उसके कंप्लीट हो जाता था, सो रिजल्ट कैन बी गेट वेरी शॉर्टली. तो जो कंट्रास्टिंग पेयर्स थे, फॉर एग्जांपल टॉल है और हाई, जो टॉल है और शॉर्ट है, कंट्रास्टिंग का मतलब ये कि ट्रेड्स वर इजीली डिस्टिंग्विशेबल. फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड, और सेल्फ पोलिनेटेड थे. फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पोलिनेटेड इजीली यूजिंग मैनुअल टेक्निक्स, जो से उसको क्रॉसिंग करवाना भी आसान था. हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, जो हाइब्रिड क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू बनाए थे वो आर आल्सो फर्टाइल. तो ये कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली. तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट and one contrasting pair is called monohybrid. For example, capital T का small t से क्रॉस करवाते हैं तो that is monohybrid cross. तो जो F1 उनकी आती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन. जो F1 का F1 से क्रॉस करवाए तो उनका रिजल्ट जो होगा वो F2 है, दैट इज फर्स्ट सेकंड फिलियल जनरेशन. तो इनकी हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप आप लोगों से डिस्कस किया है. तो मेंडल ने जब लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ, जो दोनों लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो जब दिए उसको नहीं था पता कि द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स. उसने कहा था जीन का उसको नहीं पता, उसने कहा कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स. मेंडल प्रपोज समथिंग स्टेबली बीइंग प्रोसेस्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो उसने कहा था कि स्टेबल चीज़ है जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाती है, लेकिन उसने गैमेट्स में कहा ये फैक्टर्स होते हैं जिनको बाद में जीन का नाम दिया गया.
Genes slash factors are the unit of inheritance, contain the information required to express the particular trait. जीन्स आर द कोड, जीन के ऊपर कोड, जीन के ऊपर कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है और पेयर के अंदर होती है, क्योंकि पेयर की भी हमने बात की, तो पेयर के अंदर क्यों कि वो अलील हैं दोनों, एक अलील एक क्रोमोसोम के ऊपर होती है, दूसरी अलील दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो जीनोटाइप है वो फिनोटाइप बनाती हैं, फिनोटाइप के बाद वो होमोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, रिसेसिव है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस की हैं। तो जो टेस्ट क्रॉस है, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम दो वैरायटीज को क्रॉस करवाते हैं, उनकी जो F1 है उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, दैट इज F1, सॉरी टेस्ट क्रॉस। F1 क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ इट्स रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फर्स्ट लेक्चर की है। सेकंड लेक्चर की भी आप लोगों को वीडियो अपलोड हो जाएगी, बाकी जो मिड तक का सारा लेक्चर है, लेकिन आप लोगों को जितने भी नोट्स हैं दो ऑल विल बी प्रोवाइडेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन call me, you can WhatsApp me, you can send through WhatsApp group, but in the form of voice recorded message, वॉइस नोट के अंदर आप भेज सकते हैं, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं जो यूट्यूब चैनल है। थैंक यू सो मच।